Yes, students. Today in this class, we are going to start chapter number 3, that is collection of data. Okay. You have already studied in chapter number 1 and 2 more about data. What is data exactly? Okay. What is data? Data refers to the information, okay, that we have collected for the purpose of investigation. Okay. डेटा बार बार हम पढ़ रहे हैं डेटा क्या होता है, डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, बट डेटा आता कहाँ से है, ठीक है. हाउ टू कलेक्ट द डेटा, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा. Okay, so in this chapter we will study that how an individual can collect the data, what are the different sources and different methods of collecting data. sources का मतलब कहाँ कहाँ से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, किस किस सोर्स के थ्रू, क्या क्या आपके पास जरिया है डेटा कलेक्ट करने का, एंड व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर द टूल्स दैट आर अवेलेबल विद यू और एनी इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन कलेक्ट द data. Now students, before explaining the sources of data, first thing I would like to explain you the term variable. What is variable exactly? In maths, I think you have already studied x variable, y variable, z variable, but these are not the variables. We only depict this, represents the variable with the help of some alphabet. Let us take an example that in 2019, the production of clothes, okay, or we can say the production of food grains was 1000 tons. Okay, I am taking the example. And in 2020, the production of food grains increases from 1000 tons to 5000 tons. Okay, are you getting my point? Here you can see that the production quantity and the years are changing. Okay, the year was 2019, now it has changed to 2020. Okay, the production was 1000 tons, now the production has changed from 1000 to 5000 tons. Here you can see that the year and the quantity of production are changing from year to year and from grains to grains. Food grains में सब कुछ आ गया, राइस भी आ सकता है, व्हीट भी आ सकता है, तो प्रोडक्शन चेंज हो रही है ईयर के साथ साथ. So the thing that changes because of any reason, जो भी थिंग हमारी चेंज होती है उसे हम बोलते हैं it is varying. Varying मतलब changing, and that varying thing is known as the variable. Are you getting my point? It means कोई भी ईयर है, कोई भी डेटा है, या फिर कोई भी वी कैन से डेटा हम नहीं बोलेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन है या किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं जो चेंज हो रहा है किसी भी रीजन की वजह से, दैट इज नोन एज वेरिएबल. और उस वेरिएबल को represent it with the help of alphabet, just like x, y and z. Clear? एंड इंफॉर्मेशन, अब आपके पास फूड ग्रेन्स तो लिखा हुआ है कि फूड ग्रेन्स वेराई हो रहा है, ईयर वेराई हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसको कितना चेंज हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? न्यूमेरिकल टर्म्स की. इट मीन्स नंबर्स की जरूरत पड़ती है, जिसको स्टडी करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये वेरिएबल वेराई हो तो रहा है, बट हाउ मच इट इज वेराइंग. So the information, the observation and the numbers that we require to study that variable is known as data. Clear? Is it clear? It means the information or the numbers or the observation that is used to study the behavior of a variable is known as data, and the thing which is changing about which we are going to study is known as variable. X, Y, Z, A, B, C, D are just the representatives of such variable. अगर बहुत बड़ा नाम है तो हम बार बार उस नाम को ना लिख के हम एक्स वाई जेड लिख देते हैं. अब वो जो डेटा है, जो नंबर्स है, अब इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो डेटा हमारे पास कहाँ से आता है. दैट इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ डेटा. इट मीन्स फ्रॉम वेयर वी कैन कलेक्ट द डेटा. So students, there are two sources of data, primary data and secondary source. First of all, we are talking about source, so primary source and secondary source. The name itself suggests what is primary source. Primary means, when we use the word primary, it means the first thing. Everything which comes on starting, that is known as primary source.
So the meaning of primary source, I have divided it into 3 points. First one is from its source of origin. It means it is the source in which data is collected from the source of origin. It means the place where the event has happened. Okay, the place where the event has happened. If you are collecting the information from that same point, from that same area, that source is known as primary source. समझ में आ रही है बात? जहां इवेंट अकर हुआ है या फिर जिस डेटा को आपको कलेक्ट करना है उसी के ओरिजिन से, मतलब जहां से वो डेटा हमारे पास आएगा, स्टार्ट हो रहा है, इंफॉर्मेशन जहां से स्टार्ट होगी, ओरिजिनेट होगी, अगर आप वहीं से डेटा को कलेक्ट कर रहे हो तो वो कौन सा सोर्स कहलाता है? दैट इज प्राइमरी सोर्स. ठीक है, इट इज द ओरिजिनल सोर्स. वी कैन से जो भी ओरिजिनल जो भी प्राइमरी सोर्स से हमें डेटा मिलता है वो कैसा डेटा होता है? ओरिजिनल डेटा होता है. ठीक है, क्योंकि आपने एग्जैक्टली वहीं से कलेक्ट किया है जहां से वो इंफॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी या फिर ओरिजिन जो उसका था. ठीक, इट ऑफर्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्या होती है? कि सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो कौन से सोर्स से मिलती है? प्राइमरी सोर्स से, क्योंकि इससे पहले वो इंफॉर्मेशन किसी और ने कलेक्ट नहीं की है, वो आपने सबसे पहले कलेक्ट किया. और कौन से सोर्स से कलेक्ट किया? प्राइमरी सोर्स से. दैट इज नोन एज प्राइमरी सोर्स. And the data which is collected with the help of primary source is known as primary data. Okay? जो डेटा आपको प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट होकर मिलता है उस डेटा को ही हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा. जहां से आपने डेटा को कलेक्ट किया है उस सोर्स को हम बोलेंगे प्राइमरी सोर्स. एंड द डेटा दैट यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स इज नोन एज प्राइमरी डेटा. फॉर एग्जाम्पल, एक रोड पर अगर एक एक्सीडेंट हुआ है तो आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स एकदम से वहां पहुंच जाते हैं कि मतलब कौन है, किसका हुआ एक्सीडेंट, न्यूज पर दिखाने के लिए. तो दैट न्यूज पीपल आर नोन एज द वी कैन से द न्यूजमैन. एंड दैट सोर्स, अगर वो उस सेम जगह से जहां वो एक्सीडेंट हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन. ठीक है, तो उसी ओरिजिन से जो डेटा कलेक्ट करके लाएगा ऑन द स्पॉट, उसी एरिया से जो डेटा कलेक्ट करके ला रहे हैं उस सोर्स को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी, क्योंकि वहां से वो इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है. ठीक है, और उस सोर्स से जो वो डेटा कलेक्ट करके लाएंगे दैट विल बी नोन एज प्राइमरी डेटा. उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी होगी? फर्स्ट हैंड. इट मीन्स सबसे पहले उन्होंने वो कलेक्ट की है, वो कहीं से ढूंढ कर नहीं लाए. ठीक है, आई होप द मीनिंग इज क्लियर. नाउ कमिंग टू द सेकेंड सोर्स, दैट इज secondary source. The name itself suggests secondary. It means it has some second information, not the first hand information. So what is the secondary source? Basically from some agency or institution. It means the source which provides and the information through which you are providing the data, it has been collected from some agency or institution. आपने सेम ओरिजिन से डेटा नहीं कलेक्ट करके अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू कोई जो डेटा ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, और आप किसी एजेंसी या इंस्टीट्यूशन के थ्रू डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, तो दैट सोर्स विल बी कंसिडर्ड एज सेकेंडरी सोर्स. ओके, दिस सोर्स विल नॉट प्रोवाइड यू, डज नॉट ऑफर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. ये सोर्स हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं देता. क्यों? क्योंकि आप कहां से डेटा कलेक्ट कर रहे हो? किसी एजेंसी से या इंस्टीट्यूशन से, मतलब जिन्होंने पहले से ये डेटा कलेक्ट किया हुआ था. अगर आप उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो इसका मतलब जिसने ये डेटा कलेक्ट किया था वो था प्राइमरी सोर्स. लेकिन अगर आप जिस एजेंसी से उनसे डेटा लेकर आ रहे हो, पूछकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो इट मीन्स इट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा. ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स कौन सा है? प्राइमरी डेटा कौन सा होता है? जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया हुआ है. ठीक है, एक ओरिजिन से कलेक्ट किया हुआ है. लेकिन सेकेंडरी सोर्स कौन सा होता है? किसी एजेंसी या इंस्टीट्यूशन या किसी न्यूज़पेपर जहां पर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्ट कर ली गई थी और आप वहां से डेटा अगर कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज नोन एज सेकेंडरी सोर्स. सो द डेटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स इज नोन एज सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किया हुआ डेटा इज नोन एज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट किया हुआ डेटा इज नोन एज secondary data. The meaning is clear, so we can make the definition with the help of these 3 points, that secondary source is that source in which
The information is collected from some agency or institution which has already collected some data. It does not offer first hand information and the data which is collected from secondary source is called secondary data. ठीक है, अब अगर उसी एक्सीडेंट जो रोड पर हुआ था उसी एक्सीडेंट की न्यूज न्यूज़पेपर में प्रिंट हो जाती है और कोई पर्सन उस न्यूज़पेपर में से डेटा को कलेक्ट करके कहीं पब्लिश कर रहा है या फिर कहीं भी यूज कर रहा है, किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसने कौन से सोर्स से डेटा कलेक्ट किया है? सेकेंडरी, क्योंकि जो वो न्यूज़पेपर है वो कौन सा सोर्स था जहां से वो इन्फॉर्मेशन आई थी? वो था प्राइमरी सोर्स। उन्होंने ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की हुई थी। आपने कहां से कलेक्ट की है? जहां पर वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो चुकी थी। ठीक है, so that will be known as secondary data. So these are the sources, मतलब डेटा को प्राइमरी सोर्स से भी कलेक्ट किया जा सकता है और सेकेंडरी सोर्स से भी आप उसे कलेक्ट। First difference can be on the basis of meaning. So what is the meaning of primary data? प्राइमरी डेटा का भी हमने क्या डिस्कस किया है मीनिंग, कि जो डेटा, the data which is collected, I will write the basis only that how you can differentiate the data. Okay, the data which is collected by the investigator for their own purpose, okay, for their own purpose is known as, for the first time is known as primary data. Okay, क्या मीनिंग लिखेंगे आप? The data which is collected for the purpose by the investigator for his own purpose for the first time is known as primary data. But the data which is collected from any other agency or institution, okay, or institution, it is known as secondary data. Is it clear? आप कह सकते हैं कोई रिपोर्ट है, ठीक है, या फिर किसी का मतलब जैसे कोई रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट अगर आपने किसी की देखी है तो रिपोर्ट मतलब वो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड था, आपने अब उसे सेकेंडरी सोर्स बन चुका है। अगर आप उस रिपोर्ट से डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो दैट विल बी सेकेंडरी डेटा। ओके, जिसने वो रिपोर्ट बनाई है एग्जैक्टली सिचुएशन को देखकर, दैट विल बी नोन एज प्राइमरी डेटा। आई होप द बेसिस इज क्लियर टू यू दैट हाउ यू कैन डिफरेंशिएट द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। नाउ कमिंग टू द सेकेंड, इट इज क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट? दैट द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी डेटा, आप खुद सोचिए, जो डेटा बिल्कुल ओरिजिन से कलेक्ट हो रहा है, फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है, उसकी क्वालिटी हाई होगी या लो होगी? ऑब्वियस सी बात है, उसकी क्वालिटी बहुत हाई होगी। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी तरीके का कोई मैनिपुलेशन, कोई चेंज, कोई बायसनेस नहीं है। जहां से डेटा है एग्जैक्टली वही प्रेजेंट हुआ है। ओके, अगर उसमें कोई बायसनेस नहीं की गई है तो the data quality of primary data is high and the quality of secondary data is low. Is it clear? The quality of primary data is high and the quality of secondary data is low. Okay, now coming to the third point, that is adjustment. Adjustment का मतलब है क्या आपको कुछ एडजस्ट करने की या फिर कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ती है प्राइमरी डेटा में? तो प्राइमरी डेटा इज टू बी एडजस्टेड। ओके, मतलब कि जो प्राइमरी डेटा है उसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो डेटा आपको चाहिए था आपने एग्जैक्टली वही कलेक्ट किया है खुद, तो आपको उसमें किसी भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी डेटा है वो किसी और से लिया गया है, हो सकता है उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो आपके इन्वेस्टिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे क्लास 11th के मार्क्स चाहिए थे इकोनॉमिक्स के, ठीक है, लेकिन स्कूल ने मुझे पूरी 11th की लिस्ट प्रोवाइड कर दी कि भाई हमारे पास तो पूरा एक टैबुलेशन है जिसमें हर एक स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स होते हैं, आप इसमें से देख लीजिए इकोनॉमिक्स के मार्क्स। तो मेरे लिए वो डेटा क्या हुआ? सेकेंडरी डेटा हुआ, क्योंकि मैंने मार्क्स खुद कलेक्ट नहीं किए बल्कि एक लिस्ट में से या किसी रिकॉर्ड में से लिए हैं। ठीक है, तो मुझे उस डेटा को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, सारे मार्क्स को हटाकर एक्सेल में फॉर एग्जांपल इको के मार्क्स अलग करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं वो डेटा खुद कलेक्ट करती, इकोनॉमिक्स के मार्क्स फॉर एग्जांपल स्टूडेंट से पूछ के मैं कलेक्ट करती, तो मेरे पास सिर्फ कौन सा डेटा आता? प्राइमरी डेटा, और उसमें मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं थी।
I hope that you are getting my point that in primary data we don't require to do any adjustment, but in secondary data we require some adjustment to be done as per the need of the investigation. Okay, coming to the fourth point, that is cost. अब आप खुद सोचिए, प्राइमरी डेटा ज्यादा कॉस्टली होगा या सेकेंडरी डेटा ज्यादा कॉस्टली होगा? आई होप द आंसर इज कि प्राइमरी डेटा मैम खुद कलेक्ट किया जाता है तो खुद पैसे खर्च करने पड़ते होंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते होंगे, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, किसी से मांग नहीं रहे हैं, तो इट मीन्स, और सेकेंडरी डेटा तो कलेक्ट किया हुआ मिल रहा है तो इट मीन्स वो कम एक्सपेंसिव होगा. इट इज द करेक्ट आंसर. द प्राइमरी डेटा इज एक्सपेंसिव but the secondary data is less expensive, okay, because it is collected by the investigator on its behalf only. वो पूरी तरीके से खुद डेटा को कलेक्ट कर रहा है, तो पूरा डेटा वो खुद सब कुछ खुद एक्सपेंस जितने भी हैं खुद स्पेंड करेगा. Nobody will provide them the money, okay. लेकिन सेकेंडरी डेटा तो प्रिंट की कॉस्ट बच गई, कलेक्शन की कॉस्ट बच गई, आने जाने की कॉस्ट बच गई, ठीक है, तो इट इज लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू प्राइमरी डेटा. ऐसा नहीं है खर्चा नहीं होता है, होता दोनों में है, लेकिन कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें ज्यादा और कम बताना है. क्लियर? अब कमिंग टू द टाइम कंज्यूमिंग. अगर हम टाइम की बात करें तो आप खुद सोचिए कौन से डेटा में ज्यादा टाइम लगेगा. भाई जो पर्सन पैसा खर्च कर रहा है उसी ओरिजिन से डेटा लेके आ रहा है, खुद डेटा ला रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे ही टाइम ज्यादा लगेगा. तो इट मीन्स द प्राइमरी डेटा इज मोर टाइम कंज्यूमिंग and the secondary data is less time consuming. Is it clear? Because this data has already been collected by some other person and we are just collecting the data from any agency or institution जिसने पहले से data collect किया हुआ है. So it means this data is less time consuming, but this data is collected by the person from the origin and for his own purpose for the first time. उसे बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्या डेटा लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है. तो इट विल टेक सम टाइम टू कलेक्ट द डेटा. आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स स्टूडेंट्स. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है. अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन डिफरेंस देखेंगे, दैट इज प्रोसेस. Process. It means primary data involves the complete process to be followed to collect the data. Primary data को collect करने के लिए पूरा process properly हमें follow करना होता है, क्योंकि वो first person है, अपने लिए data collect कर रहा है, first time data collect कर रहा है, तो he have to perform all the processes. Processes कौन से? Collection भी करेगा, ऑर्गेनाइजेशन भी करेगा, देन ऑर्गेनाइजिंग भी करेगा, देन टू प्रेजेंट द डेटा, देन टू एनालाइज द डेटा एंड देन टू मेक कंक्लूजन्स. इट मींस इंटरप्रेटिंग द डेटा. स्टैट्स में कभी भी 5 स्टेजेस की बात आए डेटा से रिलेटेड तो यू हैव टू रिमेंबर, कभी मत भूलिएगा इन 5 स्टेजेस को: कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. तो सारे काम वो खुद कर रहा है. तो इट मींस प्राइमरी डेटा इन्वॉल्व कंप्लीट प्रोसेस टू बी फॉलो, ठीक है. लेकिन सेकेंडरी वाले ने क्या किया? न्यूज़पेपर उठाया और उसमें से न्यूज कलेक्ट कर ली, ठीक है. ना तो उसने डेटा कलेक्ट किया, ना ऑर्गेनाइज किया, ना ही प्रेजेंट किया, ना ही एनालाइज किया. कंक्लूजन उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसने सिर्फ डेटा को क्या कर लिया, सिर्फ उसमें से ले लिया, सिर्फ, ठीक है, कॉपी कर लिया एक तरीके से. अगर वो कुछ रिजल्ट निकाल भी रहा है तो और इजी हो जाएगा वो रिजल्ट निकालना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होती है आपके पास उसको एनालाइज करने में टाइम कम लगता है एज कम्पेयर टू द इंफॉर्मेशन दैट यू आर कलेक्टिंग ऑन योरसेल्फ. तो सेकेंडरी डेटा डज नॉट रिक्वायर द कंप्लीट प्रोसेस टू बी फॉलोड, बट प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स कंप्लीट प्रोसेस टू बी फॉलोड. अगर आपके सामने यहाँ पे आपके सामने 6 डिफरेंसेस हैं, और भी डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं, जस्ट लाइक कि आप ये बोल सकते हैं इट प्रोवाइड्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन but it does not provide first hand information, it provides second hand information. Is it clear, students? With this we have completed the meaning of primary and secondary source and data and the difference between primary data and secondary data.